So, very good morning, all the participants. So, let us see some of the probable questions which could be asked in the examination. So, first question. I hope my screen is visible. Is it visible? Uh, no, sir. अच्छा, Screen is visible नहीं है. एक मिनट. Okay. Now I hope it is visible. Is it visible? yes, 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 sir. Okay. So, the first question is, suppose you have been an auditor in the past Hmm. and now you want to be appointed as a professional, suppose a valuer. है ना? Hmm. So what are the restrictions on that? Hmm. So these are contained in Regulation 37. So Regulation 37, if you read of CIRP regulations, it says if you have been an auditor of the CD at any time during the period of 5 years preceding the insolvency commencement date, then you cannot be appointed as a professional. Right? Hmm. So this is the रेगुलेशन. 37 नहीं है, 37 गलत लिखा. 37 is, it is 27. So regulation 27 of CIRP regulations. Now, how the examiner will ask this question? He will say that okay, you have been a forensic auditor in the past, right? Hmm. And now whether you can be appointed as a professional. So what will be your answer? In the past, you have done forensic audit of that company, XYZ Limited. Now it is into CIRP. And now they want to appoint you as a professional. So can they appoint you? यस सर बिकॉज वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए है ना लिमिटेशन. हाँ, नहीं, आप उसके अलावा क्या पूछोगे? और भी कुछ पूछोगे उससे? उसके अलावा और क्या पूछोगे आप उससे? रूप किरण जी, आई होप यू हैव गॉट माय क्वेश्चन. Yes, sir. So my question is, a professional comes to you, है ना? Yes, sir. So since he considers you as an insolvency expert, so he comes to you. He says that I have done forensic audit of this company, and now they want to appoint me as a professional. So whether they can appoint me, whether there is any bar. So what will be your answer? वो 3 years 5 years क्राइटेरिया है ना सर, से हो जाए. नहीं तो बताइए ना एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया है. My question is, he is a registered valuer also, right? Yes, sir. Now the company wants to appoint him as a registered valuer. Yes, sir. So whether they can appoint him as registered valuer. So what are the probable questions you will ask him before confirming that he can be appointed as a registered valuer? He has done During forensic which audit in the period? past. During which period you have conducted forensic audit? Okay, okay. Say I Whether conducted forensic audit last year only. सर रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए. नहीं, my question is specific. रिलेटेड पार्टी की बात ही नहीं है. A chartered accountant enters your office. He is a registered valuer also. He is a forensic auditor also. He says that I have done forensic audit of this company in the last year. Now they want to appoint me as a professional, as a registered valuer. Whether they can appoint me, what is your opinion? So what will be your answer? गोल मोल आंसर नहीं. क्वालिफाइड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. वो तो है ही है. वो तो है ही है, तभी तो उसको अपॉइंट करना है. उसके अलावा उसका टर्नओवर कितना है देखना है सर. इस कंपनी से सीडी से कितना टर्नओवर आ रहा है. किसको? 5%. ये जो नया प्रोफेशनल आ रहा है ना, हाँ हाँ. उसको इस सीडी से कितना टर्नओवर मिला है. मोर देन 5% या मोर देन 10%. नहीं, वो तो क्राइटेरिया है ही नहीं. आप रेगुलेशन 27 पढ़िए एक बार जरा भाई. फॉर दिस यू विल रेफर टू रेगुलेशन 27. यस सर. रेगुलेशन 27 में क्या कहता है? ही शुड नॉट बी ए रिलेटिव ऑफ द रेजोल्यूशन पर्सनल. आप पूछोगे भाई आप आरपी के रिलेटिव तो नहीं हो, ठीक है? यस. अब वो कहेगा भाई रिलेटिव की डेफिनेशन मैं कहां से देखूं? 524 ए कैपिटल ए पे चले जाओ, यस. ठीक है? यस. सेकंड, रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर तो नहीं हो, कहां से देखूं? 524 में चले जाओ. वो कहता मैं नहीं हूं, ठीक है? रिलेटिव भी नहीं हूं, रिलेटेड पार्टी भी नहीं हूं. अब बताओ
आप पूछते हो आप ऑडिटर रहे हो क्या 5 साल में? क्या मैं ऑडिटर भी नहीं रहा, मैं फॉरेंसिक ऑडिटर हो रहा हूँ, ऑडिटर नहीं रहा। ऑडिटर की डेफिनेशन है, ठीक है। और पार्टनर या डायरेक्टर हो, पार्टनर या डायरेक्टर हम्म, भी नहीं हो, तो फिर आपका क्या आंसर है? So he can be appointed, sir. नहीं, टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया है क्या? टर्नओवर का वो ऑडिट के लिए है, सर। हम्म। वो तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एलिजिबिलिटी में होता है। वो तो उसमें है ना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करना है उसको आपको। आप एनीथिंग यू विल गेट इन डिस्क्लोजर, जो हमने कल डिस्क्लोजर पढ़ा था, उसमें हाँ, कुछ सर। आएगा कवर? भाई वो कहता है देखो जी, मैं तो ना तो आरपी का रिलेटिव हूँ, ना मैं सीडी की रिलेटेड पार्टी हूँ, ना मैं उसका ऑडिटर रहा हूँ, ना मैं आईपीई का पार्टनर या डायरेक्टर हूँ। तो अब बताओ, मैं क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट हो सकता हूँ? हो और अगर सकते हो हैं, सर। सकता हूं तो क्या क्या कंडीशंस होंगी? मेरे को कहाँ कहाँ डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, पूछ रहा है आपसे एज ए कंसल्टेंट। तो आपका क्या आंसर है? इनको इसको डिस्क्लोजर कुछ भी देने का नहीं रहता, सर, क्योंकि कौन से भी उसमें नहीं आ रहे ना, ABC में, जब जो कल हम पढ़े। नहीं, क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है। देखिए ऐसा है, अगर उसको सीडी से 5% से ज्यादा टर्नओवर मिला तो आ जाएगा, डिस्क्लोजर में आ जाएगा। अच्छा, अच्छा। दोबारा पढ़ लेते हैं ना एक बारी। देखो ये डिस्कशन का पर्पस क्या है कि मुझे भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। सर आईपी रेगुलेशन में जाना है। आईपी रेगुलेशंस में जाना है हम। आईपी रेगुलेशंस में कल हमने पढ़ा था ना उसके बारे में, कि डिस्क्लोजर कब होगा। अब वो आपको कहां देखना है? 8C में देखना है। 8C क्या कहता है? रिलेशनशिप ऑफ द अदर प्रोफेशनल विद सीडी, ठीक है। सो आई एम रेफरिंग टू रेगुलेशन 8C, पॉइंट नंबर 8C ऑफ Insolvency फर्स्ट शेड्यूल। professionals shall ensure disclosure of relationship, if any, with another other professional engaged by him द कॉर्पोरेट डेटर, तो to कॉर्पोरेट the डेटर के साथ तो है ना उसका रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप का मतलब दिया हुआ है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि ये जो अदर प्रोफेशनल है, इफ ही हैज डिराइव्ड 5% और मोर इन अ ईयर फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेज टू द रिलेटेड पार्टी। क्यों रूप किरण जी, क्या कहते हो? हाँ, सर। आप पूछ लो कि भाई आपका टर्नओवर कितना है, ठीक है। हाँ, हाँ। जो फोरेंसिक ऑडिटर से हम पूछ लेंगे भाई तुम्हारा टर्नओवर कितना है, और तुम्हारे को टर्नओवर में से उस सीडी से कितना उस मिला सीडी का, तुम्हारे को। एक्चुअली, हाँ, वही तो देखना है, सर। उस सीडी का टर्नओवर मोर देन 5% है क्या, देखना है। हाँ, नहीं टर्नओवर तो आपको अपना देखना है, सीडी का नहीं देखना। सीडी का तो पता ही नहीं हाँ, आपको सीडी टर्नओवर। का। पांच इनके परसेंट टर्नओवर में सीडी का पोर्शन मोर देन 5% है क्या, देखना राइट, वेरी करेक्ट। हाँ, है। अगर यस। आपका 50 lakhs है और आपको उसमें से मोर देन 5। कितना मिल जाएगा? 2.5, 2.5। है ना। 2.5 सीडी लाख का से टू ज्यादा पॉइंट अगर फाइव है उसको तो। मिल गया, हाँ। तो फिर आप जो है, अब फिर आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। यू कैन बी अपॉइंटेड, यस, बट सर। डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, है ना। बार यस, तो सर। नहीं है। देखो फॉर बार वी हैव टू रेफर टू रेगुलेशन 27, ठीक है। एंड फॉर डिस्क्लोजर वी हैव टू रेफर टू फर्स्ट शेड्यूल। मतलब अगर वो बनाना चाहे इतने छोटे छोटे पॉइंट पे पूरी केस स्टडी बना सकता है। ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट इज आस्क्ड, वो बोला है कैन ऑडिटर बी अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट। सो आई हैव रिफ्रेम्ड द क्वेश्चन एज वेदर एनी पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्रोफेशनल, है ना। हम्म। तो उसमें काफी चीजें कवर हो जाएंगी। तो हाँ, फॉर आंसरिंग एनी सच क्वेश्चन यू हैव टू रेफर टू रेगुलेशन 27 along with फर्स्ट शेड्यूल। नहीं, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं भी सही बोल रहा हूं। फर्स्ट शेड्यूल टू आईपी रेगुलेशंस। क्यों त्रिषा जी? सर बिल्कुल ठीक है।
चलिए, अच्छा, कॉस्ट टू बी बोर्न बाय whom ड्यूरिंग कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट। पहला क्वेश्चन regarding compromise arrangement and amalgamation, whether this compromise arrangement and amalgamation can be explored during CIRP also, whether resolution applicant can propose this thing। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट भी ये प्रपोज कर सकता है क्या? तो लास्ट रेगुलेशन में पढ़ा तो था 36 ऑनवर्ड की कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट चेक कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट भी ये प्रपोज कर सकता है क्या? एप्लीकेंट, हाँ, देखना पड़ेगा। वो रेजोल्यूशन प्लान में आ जाएगा ना। तो रेजोल्यूशन प्लान में देखो वो क्या क्या प्रपोज कर सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये है। कर रेगुलेशन सकता है 36 सर, में मिल जाएगा क्या? कहाँ कंप्रोमाइज मिलेगा? अमालगमेशन मर्जर डीमर्जर कर सकते हैं सर। हाँ, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकता है रिस्ट्रक्चर, ऑफ द हाँ। कॉर्पोरेट डेटर बाय वे ऑफ मर्जर एमलगमेशन एंड डीमर्जर, ये तो कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेदर द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कैन प्रपोज मर्जर एमलगमेशन एंड डीमर्जर, द आंसर इज यस। ठीक है, और ये कहां दिया हुआ है? रेगुलेशन नंबर 37 में। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग सीओसी, during the last meeting, COC has suggested this compromise arrangement and amalgamation. And while the proposal is pending with the adjudicating authority for approval, the RP is exploring that possibility. He can do it, है ना? We have discussed yesterday. यस सर। Now the question is, the resolution plan was not approved and the company went into liquidation. Now during liquidation, what is the period during which this possibility should be explored? लिक्विडेशन में भी कुछ पीरियड है इसके लिए। पीरियड है ना, इनिशियली को कितने दिन के अंदर ये उसको करना है कंप्लीट। 90 डेज है शायद, है ना? 90 डेज का पीरियड है ना यस सर। फॉर दिस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। क्यों रूप किरण जी? यस सर, 90 डेज है सर। है ना? हाँ। हाँ तो जी। Which अभी rule, क्या sir? है कि सपोज देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, तो ये जो कॉस्ट होगी ये कौन पेयर करेगा? सर इसमें होता है अगर प्लान अप्रूव्ड हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। नहीं, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट तो रहा ही नहीं ना, अभी तो लिक्विडेशन में आ गए। अभी लिक्विडेशन में आ गए तो ये रेगुलेशन 2B इसका आंसर करता है। रेगुलेशन 2B ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस। ये क्या कहता है भाई? स्कीम या तो अप्रूव होगी या अप्रूव नहीं होगी। अगर अप्रूव हो जाएगी तो CD विल बियर द कॉस्ट, अदरवाइज द पर्सन हु प्रपोज द स्कीम, बिकॉज डिफरेंट पर्सन में प्रपोज द स्कीम। ठीक है, अच्छा। नाउ वेदर a person who is ineligible under 29A, whether he can propose the scheme? A person who is ineligible under 29A, whether he can propose any such scheme of compromise arrangement or amalgamation? No. नो No. सर। No, sir, no. बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि लिक्विडेटर ने ये स्कीम जो है, लिक्विडेटर प्रपोज दिस। ठीक है, अब हमारा रेगुलेशन 2B क्या कहता है? रेगुलेशन 2B ये कहता है कि भैया ये एक्सप्लोर करोगे इस पॉसिबिलिटी को, और वो स्कीम हो गई रिजेक्ट, एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब इसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? लिक्विडेटर ने स्कीम प्रपोज की और वो स्कीम एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दी, कर सकते हैं। तो उस केस में ये कॉस्ट कौन बियर करेगा? क्या लिक्विडेटर अपनी जेब से बियर करेगा? क्या कौन बियर करेगा? रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बेयर करेगा सर। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट तो है ही नहीं ना, लिक्विडेशन में आ गए। अच्छा अच्छा, लिक्विडेशन में। ओके ओके। तो जिसने सर प्रपोज किए वही बियर करेगा। नहीं, प्रपोज तो लिक्विडेटर ने की ना, लिक्विडेटर भी तो स्कीम डाल सकता है ना एनसीएलटी में। सर वो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस में आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि लिक्विडेटर अपने अपनी जेब से तो नहीं भरेगा ना वो। सो दैट विल बी पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट, दैट विल बी बोर्न बाय द सीडी। एक बार लिक्विडेशन कॉस्ट में भी देख लेते हैं इसका आंसर। क्या लिक्विडेशन कॉस्ट में भी ऐसा कुछ लिखा है क्या? लिक्विडेशन कॉस्ट का जो है ब्रेकअप, उसमें क्या लिखता है?
liquidation cost, fees payable, remuneration payable, cost incurred by the liquidator under sub-regulation 2, cost incurred by the liquidator for preservation, cost incurred in carrying on the business as a going concern, amount payable under regulation 3 of regulation 2A, any other cost incurred by the liquidator which is essential for completing the liquidation process, provided that the cost, if any, incurred by the liquidator in relation to compromise or arrangement, if any, shall not form part of liquidation cost. ठीक है, ये मैं पढ़ रहा हूं आपका डेफिनेशन से, लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली कहता है कि भाई इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। ठीक है, तो उस केस में सीडी ही बियर करेगा, क्योंकि सीडी ने बोला ना उसको, बेसिकली लिक्विडेटर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ होम, लिक्विडेटर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सीओसी ओनली, है ना, सीओसी ने तो बोला ना उसको। चलिए, क्यों रूप किरण जी? हाँ जी सर, हाँ जी, सही है। बट इफ दे डायरेक्टली आस्क यू कि भाई हम्म, लिक्विडेटर हैज प्रपोज दिस स्कीम, हम्म। और मैं तो चाह रहा हूं, आई हैव गॉट हाई होप्स फ्रॉम यू रूप किरण जी, आप दो चार केस स्टडी बना दो ना, जितना हम डिस्कस बनाऊंगा करते सर, हैं। थोड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ, बना दूंगा 2-4 दिन के बाद बनाऊंगा। कोई बात नहीं, हाँ, नो मेरी इश्यूज, नो वाइफ, इश्यूज। 7th को मेरी वाइफ आ रही है, वो आने के बाद फ्री हो जाऊंगा मैं, ओके ओके, नो इश्यूज, यूएस नो में। इश्यूज, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो यस। उस इसमें यह है कि इफ दे डायरेक्टली आस्क यू दिस क्वेश्चन कि भाई वेदर लिक्विडेटर हैज प्रपोज दिस स्कीम, वेदर इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट, द आंसर इज नो। ठीक है ना, तो लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, इट विल बी बोर्न बाय द सीडी। नेक्स्ट यस। क्वेश्चन, चलिए। ये प्रोफेशनल एथिक्स वाला हमने कर ही लिया था केस स्टडी, कि इन केस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स केस स्टडी, दिस केस स्टडी केम रिसेंटली इन एग्जामिनेशन। सो व्हाट वाज आस्क्ड, ए देयर वाज एन एफसी एंड ही वाज removed, his status was changed from FC to OC based on the legal opinion which was given by the wife of the IP who was a legal advisor. ठीक है, so and after changing his status from FC to OC, withdrawal application agenda was moved and it was approved, and another agenda was for increase in remuneration of the IP, that was also approved. So whether it is correct, the answer was no. ठीक है ना, तो इट इज अगेंस्ट प्रोफेशनल एथिक्स। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, अगर मान लीजिए ये हो गया, उसने अप्रूव करा लिया, अब उस पर पनिशमेंट लगेगी क्या, आईपी पर कोई पनिशमेंट होगी क्या, इससे भी पूछ सकता है। हाँ, बोर्ड को रिफर कर देना सर ये मैटर। हाँ, बोर्ड को रेफर कर देंगे, फिर उसके बोर्ड अलावा और भी डिसिप्लिनरी, कुछ होगा क्या? बोर्ड फिर इन्वेस्टिगेशन कराएगी, फिर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी। हाँ, नहीं वो तो है, बट इसमें अगर ये सीआईआरपी प्रोसेस में भी तो कुछ है ना पेनल्टी सेक्शन हमारे, सीआईआरपी में जो पेनल्टी सेक्शंस हैं हाँ है सर, 2 वो lakhs भी तो कुछ सर। कहते हैं ना। हाँ, तो उस केस में कितनी पेनल्टी लगेगी इसके ऊपर? पनिशमेंट पर मिसकंडक्ट में लग जाएगी मेरे हिसाब से। सेक्शन 70 सबसेक्शन 2, सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 वी रीड, क्या बोलता है, इफ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल डेलिबरेटली कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, आ जाएगा इसमें, हम्म, यहां कवर हो जाएगा। हाँ सर, 2 He lakhs, shall be 1 lakh ऐसा है punishable with देखिए। imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees हम्म। but may extend to 5 lakh rupees, or with both। ठीक है, कौन सा सेक्शन आपने देखा? सेक्शन 70 सबसेक्शन 2, 70 सर। 70 सबसेक्शन 2। ओके सर। ओके। तो वो क्या कहता है कि डेलिबरेट अगर कॉन्ट्रावेंशन है, तो डेलिबरेट कॉन्ट्रावेंशन तो हो गई ना यहाँ। अब अगर मान लीजिए उसको इम्प्रिजनमेंट होनी है, तो इम्प्रिजनमेंट के लिए कैसे होगा, क्या एनसीएलटी डायरेक्ट जेल भेज देगी, क्या होगा? स्पेशल कोर्ट। हाँ, स्पेशल कोर्ट्स, और प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेशल कोर्ट्स कौन से सेक्शन में दिए गए हैं? 439 ना सर, हाँ जी, 439 कंपनीज एक्ट, अरे आईबीसी पढ़ रहे हो, कंपनी एक्ट में कहाँ पहुंच गए? स्पेशल कोर्ट। हम्म,
236, सेक्शन 236 ऑफ आईबीसी, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस बाय स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि कंप्लेंट करेगी कौन, कंप्लेंट करेगा? बोर्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट, और एनी पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दिस बिहाफ। एनसीएलटी बोर्ड को लिखेगा, बोर्ड जो है फिर जो है एक कोर्ट को लिखेगा कि भाई इसको जेल में भेजो। ये है तो सेक्शन 236। चलिए, सर ये वाला थोड़ा वो करवा दो ना सर, 236 वाला, मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर। आई नहीं एम देखिए टोटली न्यू। ऐसा होता है, मैं ये कह रहा हूं 230। कि जहां पर भी इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजंस हैं, भाई सबसे पहले तो क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास आप जाओगे। ठीक है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने देखा भाई ये कॉन्ट्रावेंशन तो है सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 का। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, हमने हाँ पढ़ा ना अभी, वन हाँ लाख टू हाँ, फाइव लैक्स और 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट और बोथ। ठीक है, ट्राई, हाँ हाँ सर, वो तो अब ठीक है बात सर। यह है कि क्या एनसीएलटी डायरेक्ट जेल भेज देगा? द आंसर इज नो। एनसीएलटी बोर्ड को लिखेगा, बोर्ड कोर्ट को लिखेगा, और कोर्ट में फिर ट्रायल चलेगा इसका, स्पेशल कोर्ट। इस स्पेशल कोड वाला क्या है सर? वो 236 वाला है ना सर, नॉट कंटेनिंग क्रिमिनल प्रोसीजर। हाँ हाँ, वो ये कहता है, सबसे पहले तो ये है कि भैया प्रोसीजर कैसा होगा सेक्शन 236 में। जो सिविल कोर्ट का प्रोसीजर होता है नॉर्मली, हाँ। वो नहीं चलेगा इसमें। ओ समझ रहे हो? हो। तो सही वो है ये सर, कहता सही है है। कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो भी लिखा हो, ये स्पेशल कोर्ट्स में चलेंगे, विच आर एस्टेब्लिश्ड अंडर चैप्टर 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, हम्म। ओके सर। दूसरी बात ये कि कोर्ट जो इसका कॉग्निजेंस कैसे लेगा, इसमें बोर्ड की कंप्लेंट मिलेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की या एनी पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एनसीईआरटी लिखेगा बोर्ड को, बोर्ड लिखेगा कोर्ट को, और फिर कोर्ट में ट्रायल चलेगा इसका। ठीक है, और कौन से हम्म प्रोविजन लगेंगे? प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर ए स्पेशल कोर्ट, और स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, हम्म। और इसमें बोर्ड की या सेंट्रल गवर्नमेंट की या पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है टू कंडक्ट दिस ट्रायल, उसकी पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है। ये 236 है। ठीक है जी, हम्म। चलिए। मतलब ये सर कैसा होता है सर, 236 स्पेशल कोर्ट यानी कोई स्पेशल अलग कोर्ट तरह के जैसे है ना, जैसे यहां पर दिल्ली में नहीं सर, द्वारका में नेक्स्ट है, इसी तरह नेक्स्ट से मुंबई सेक्शन में टू भी है स्पेशल कोर्ट्स। 237 में दिया है सर, नेक्स्ट सेक्शन में कि हाई हाँ, कोर्ट ओके। विल बी ट्रीटेड एज स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट विल बी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट विल बी ट्रीटेड एज स्पेशल कोर्ट। वो तो 237 में तो अपील की बात करता है, हम्म। वो अपील अपील की बात, डिवीजन। वो दैट इज डिफरेंट मैटर। 236 अच्छा इज अच्छा। डिफरेंट। मैं तो आपको कोर्ट का हम्म। एड्रेस भी बता सकता हूँ, द्वारका में है कोर्ट, हम्म। इसी तरह से मुंबई में भी है। मतलब सर हमें, मतलब आईपी आईपी में कोई हमने कुछ कर दिया है और फाउंड गिल्टी, देन वी हैव टू गो फॉर दैट स्पेशल कोर्ट प्रोसीजर। हाँ, ऐसा अगर है सर? अगर अगर इफ यू आर हेल्ड गिल्टी, भाई आप हाँ। क्या करोगे? आपने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आपको गिल्टी ठहराया, आप अपील हाँ। करोगे हम्म। एनसीएलटी को, सुप्रीम कोर्ट हाँ। में अपील करोगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं, गिल्टी ठहरा दिया। पर सर डायरेक्ट थोड़ी सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सर। नहीं, डायरेक्ट आप थोड़ी जाओगे। ओके। अरे ओके आपने तो सर। गड़बड़ करी है, दूसरा आदमी हाँ। जाएगा ना। ओके सर, ओके सर, ओके 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 ओके। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है सर, ठीक है समझ सर, रहे ओके। हो? इसके हम्म। अलावा, इसके अलावा इसमें ग्रीवांस एंड कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर भी है। कोई ओके भी सर, वो आदमी जिसको लगता है कि भाई ये इसने गड़बड़ की है, वो ग्रीवांस फाइल कर सकता है या ग्रीवेंस कंप्लेंट फाइल कर रिड्रेसल। सकता है बोर्ड को। एनी ओके अग्रीव्ड पर्सन। हाँ, नहीं ओके। एग्रीड भी होना जरूरी नहीं है। देखिए इसमें क्या है, ग्रीवांस एंड कंप्लेंट हैंडलिंग मैकेनिज्म है। वो ग्रीवांस एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म में क्या है, ग्रीवांस में तो ये है कि ही इज एन एग्रीड पर्सन, लेकिन कंप्लेंट में क्या है, देयर इज डिफरेंस। कंप्लेंट में ये है कि भाई आपको लगता है कि वायोलेशन हुआ है। ठीक है, वायोलेशन के बारे में कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, एनी थर्ड पर्सन, जिसको लग रहा है भाई ये लॉ का वायोलेशन किया है इस आदमी ने, ही मे बी प्रिवी टू सम इंफॉर्मेशन, है ना, तो वो कंप्लेंट कर सकता राज्य आपकी दीवार छोकरो छोड़े। है। ठीक है, चलिए राज्य आपकी हम ठीक है मैं दिला अब चलते हैं पीपीआईआरपी पर। खिलाफ। 25 तो नरेंद्र पटेल जी, जब ला- आप अपनी बात कर रहे हो ना तो 25 म्यूट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप म्यूट कर सकते हो, है ना। पीपीआईआरपी, पीपीआईआरपी क्या बोलता है? ये फॉर्म P11 क्या है?
तो 11 तो मतलब शगुन का नंबर है, ठीक है ना, तो इसमें कुछ अच्छी बात हो रही होगी। तो फॉर्म P11 में है इनविटेशन फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स, ठीक है। आप क्या करते हो, रेजोल्यूशन प्लान्स इनवाइट करते हो। और जब शगुन की बात हो रही तो दूसरा भी कुछ शगुन ही होगा, तो उसमें 21 दिन का टाइम है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, 11 दिन और 21 दिन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, सेक्शन 8। सेक्शन 8 के बारे में हमने एक वो PDF ग्रुप में डाला। सेक्शन 8 थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, दो चार मेन मेन चीजें, या उसको बाद में डिस्कस करें, क्यों रूप किरण जी? कर लेंगे सर, कर लेंगे। अभी कर ले, हाँ सर। अभी कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन 8 पर ना बहुत सवाल पूछ रहा है आजकल वो। हम्म। ये है इसमें, ये सेक्शन 8 में शेयर करता हूं, ठीक है। तो ये नजर आ रहा होगा मेरा स्क्रीन आपको, यस सर। है ना? ये आ गया। तो सेक्शन 8 का एक FAQ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये FAQ मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। ये कंपनी सेक्रेटरीज का एक पब्लिकेशन है, हालांकि पुराना है लेकिन काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। सेक्शन 8 का है सर? हाँ, ओ हो, सेक्शन 8 कंपनी। हाँ, सेक्शन 8 कंपनी। ओके तो सर। सेक्शन 8 में क्या है कि ना, सेक्शन 8 एक स्पेसिफिक टाइप की कंपनी होती है, आपको मालूम ही है ना, कौन अरे सी कंपनी होती सर, है ये? वी नो सर, वी नो एट दैट लेवल सर, वी नो ऑल्सो बेसिक सर। हाँ, ठीक है ना। तो सेक्शन हाँ 8 सर। कंपनी इज बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, है ना, यस बट यस इट इज यस इन द सर। नेचर ऑफ ए कंपनी, सो नेचुरली द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट अप्लाई, यस ठीक है। सर। हाँ। तो अब इसमें देखते हैं जो जो भी प्रोविजंस हैं। एक मिनट, मैं ना दूसरी फाइल शेयर करता हूँ, कल उसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जस्ट मिनट, एक मिनट, ये जो है, यस ये सर। है ना, ये नजर आ रही है ना? हाँ, आ रही ठीक है है, सर, आ रही है सर। हाँ, ठीक है। शायद इसमें मैंने ना हाईलाइट किया हुआ है, तो इसलिए ये वाली ठीक रहेगी मेरे हिसाब से। ये देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, मैंने रेड में मार्क कर दी, ठीक है। पूरा रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, अगर पूरी पढ़ लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं पढ़ लो तो इतना तो जरूर पढ़ के चले जाना, ठीक है। क्या तो कितना पढ़ना है सर, कितना पढ़ना है सर? जो रेड में मार्क किया है, ये रेड मार्क नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? नहीं सर, जस्ट शेयर स्क्रीन सर, नॉट शेयरिंग स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन शेयर बहुत नहीं हो रही, एक मिनट, स्क्रीन सर, शेयर, बहुत डिस्टर्ब, कोई ना कोई लोग आ ही जाते हैं सर, क्या बोलूं सर अभी। कोई बात नहीं। तो आपके पास स्टाफ अरे चूक सर, नहीं है क्या? नहीं स्टाफ है सर, पर देर आर सम अदर कमिटमेंट। आई एम सिटिंग एट अनदर प्लेस, स्टाफ डूइंग ऑल ओके, वर्क इन ओके, माय ओके, ऑफिस। चलिए, कोई बात नहीं। सेक्शन 8, हमें क्या दिक्कत है, जो जो मर्जी आए, बट ये जब आप मनी को म्यूट कर लिया करो जब कोई आ जाए। तो सेक्शन 8, हाँ सेक्शन सॉरी एट में क्या सर, है, हाँ सर। सेक्शन मैंने क्या किया है, जो रेड में मार्क है, रेड मार्क नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. Section 8 continues to provide restriction on application of profit and permit the same only for the purpose of which the company is promoted, prohibited declaration of dividend, continues to permit partnership firm to be a member of Section 8 of the Companies Act 2013. अब देखो, इसमें ना वो सवाल पूछ सकता है, वो ये कहता है कि भाई, वेदर देयर इज एनी डिक्लेरेशन, प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय सेक्शन 8 कंपनी, द आंसर इज यस, ठीक है। तो ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। वेदर ए पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, द आंसर इज यस, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें क्या हो गया, दो क्वेश्चन हो गए आपके, क्या क्या वेदर ए सेक्शन 8 कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड, द आंसर इज नो, देयर इज प्रोहिबिशन। सेकंड, वेदर ए पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी, द आंसर इज यस, ठीक है। Hmm. चलिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो। Okay, sir.
मैं सिर्फ वही कवर करूंगा जो मैंने रेड में मार्क किया है। बाकी तो पूरी रामायण आप पढ़ ही सकते हो, मैंने आपके साथ वो भी कर लिया शेयर, इसका पुराना वीडियो भी। ठीक है, जो पुराना मेरा वीडियो है सेक्शन 8 कंपनी पे, जिसमें मैंने पूरा 2 घंटे डिस्कस किया है सेक्शन 8 कंपनी, वो भी आपसे शेयर कर दिया है। ठीक है। पर्सन, द टर्म पर्सन क्या डिफाइंड है अंडर कंपनीज एक्ट? तो टर्म पर्सन इज नॉट डिफाइंड है क्या सेक्शन, किसी के पास कंपनीज एक्ट है इस टाइम? कंपनीज एक्ट, हाँ, यस सर, यस सर। देखो जरा, तो कंपनीज एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन है अगर वो पूछेगा आपसे। पर्सन की डेफिनेशन। हम्म, भाई पूछ सकता है ना आपसे सवाल। सेक्शन 2 में मिलेगी डेफिनेशन आपको, है ना? आईबीसी में? आईबीसी में नहीं, कंपनीज एक्ट। नहीं। ओके ओके। आईबीसी में तो डिफाइंड है ही पर्सन, ना वही तो। जैसे इनकम टैक्स में भी डिफाइंड है। क्वेश्चन ये है कि क्या कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है पर्सन? Might be definition is not हम्म, not given, sir. Not given, sir. नॉट गिवन ना, हाँ। तो हाँ। अगर आपसे पूछेगा वेदर द टर्म पर्सन इज डिफाइंड, या द टर्म पर्सन इज नॉट डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ऐसा ऑप्शन बना देगा। आईबीसी, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, नन ऑफ द अबव। ठीक है ना? तो अगर हाँ। आपने नन ऑफ द अबव कर दिया तो गलत हो गया, आपको कंपनीज एक्ट टिक करना। समझ गए? यस सर। चलिए, लेकिन आईबीसी में भी क्या कहता है? आईबीसी में भी कहता है भाई अगर कहीं डिफाइंड नहीं है तो जनरल क्लॉज एक्ट में चले जाओ, लेकिन आईबीसी में तो डिफाइंड है ही। ऐसे ऐसे सवाल बनाएगा वो। ठीक है। तो बाय वर्च्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 सब सेक्शन 3, इवन ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वेदर ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, द आंसर इज यस। ठीक है। कहां लिखा है? सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 में। बेसिक बेसिक बातें मैंने हाईलाइट कर दी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे जनरली पूछता है। ठीक है। वेदर ए कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी कैन बी रजिस्टर्ड एज ए सेक्शन 8 कंपनी, द आंसर इज नो। ठीक है। सो कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी, विद और विदाउट शेयर कैपिटल। ये बेसिक बेसिक बातें जरूर याद रहनी चाहिए आपको। बाकी तो पूरा चीज है ही। अच्छा, कैन ए वन पर्सन कंपनी बी इनकॉर्पोरेटेड एज और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी? ठीक है, एक ओपीसी है आपके पास, क्या ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो? नो। तो रूल 3 कहता है, रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स prohibits a one person company to be incorporated as a section 8 company or to convert into a section 8 company। अगर आपके पास ओपीसी है तो आप उसको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और ना ही वन पर्सन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है एज ए सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। चलिए, कैन यस ए सर। one person company become a member of section 8 company? No. Rule 3(6) of the Companies Act prohibits one person company to invest in securities of any body corporate। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वन पर्सन कंपनी वाला सवाल भी हो गया। तो रूल 3(6) है, वो ये कहता है कि वन पर्सन कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कैन ए पार्टनरशिप फर्म और एन एलएलपी बिकम ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी? यस। तो अंडर द कंपनीज एक्ट पार्टनरशिप फर्म और एन एलएलपी कैन बिकम मेंबर ऑफ ए सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ रिस्पेक्टिव एक्ट नीड्स टू बी कंप्लाइड विद बाय द पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी एज द केस में बी। चलिए, a cooperative society can be regarded as a person and thus capable of becoming subscriber of a company including section 8 company। क्या कोऑपरेटिव
सोसाइटी जो है वो बन सकती है मेंबर सेक्शन 8 कंपनी का? द आंसर इज यस। ठीक है। कैन ए कंपनी बी ट्रीटेड एज सेक्शन 8 कंपनी एज वेल एज ए स्मॉल कंपनी? भाई स्मॉल कंपनी की अलग डेफिनेशन है, सेक्शन 8 की अलग है। तो क्या सेक्शन 8 कंपनी स्मॉल कंपनी भी हो सकती है? नो, as provisions of section 285 does not apply to section 8 company. So section 8 company cannot be treated as a small company. वहां लिखा है ना, वहां स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है 285 में। 285 पढ़ सकते हैं एक बार, या कंफर्म कर No, सकते हैं? as per the provision of Section 285, 285 does not apply to Section 8 company, and accordingly, a Section 8 company cannot be treated as small company. हम्म। Likewise, a small company on conversion to a Section 8 company shall cease to be a small company. अगर मान लो एक स्मॉल कंपनी को आपने सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, उल्टा भी पूछ सकता है, क्या स्मॉल कंपनी को आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी फिर। स्मॉल कंपनी का क्या है सर? 440 टर्नओवर, नहीं, टर्नओवर 20। 285। नहीं, वो तो सही है सर, बट लिमिट इज वो क्या है सर? टर्नओवर विल बी 40 एंड 4 विल बी अ नेट वर्थ। वो तो है ही भाई, आपके ये 4 करोड़ और 40 करोड़ है, 4 करोड़ पेड अप कैपिटल और 40 करोड़ आपकी टर्नओवर, टर्नओवर। टर्नओवर। ओके और सर, पेड अभी अप जो हो टर्नओवर। गया वो बाद में चेंज हुआ, वो आपके सिलेबस में नहीं है। अभी हो गया 10 ओके, और 100, 10 और 100, ठीक है लेकिन वो सर, ठीक आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में 440 है। ठीक है। ओके सर, ओके ओके। तो इसमें क्या क्या सवाल पूछ सकता है आपसे? एक तो ये पूछ सकता है कि भाई एक स्मॉल कंपनी है, क्या वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है? द आंसर इज यस। ठीक है। लेकिन जो सेक्शन 8 कंपनी है वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी, एक ही चीज रह सकती है, या तो स्मॉल कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी। अगर आपने स्मॉल कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, वो स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी, फिर डेफिनेशन से आउट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, क्या बाहर से पैसे ले सकती है सेक्शन 8 कंपनी? ले सकती है। तो वो जैसे एफसीआरए वगैरह में लेते हैं, तो देर आर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स टू बी कंप्लाइड विद अंडर द एफसीआरए एक्ट बिफोर ए सेक्शन 8 कंपनी कैन रिसीव एनी कंट्रीब्यूशंस और डोनेशंस फ्रॉम ओवरसीज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम नॉन रेजिडेंट्स। ठीक है। तो एफसीआरए लगता है उसमें। चलिए, ये कुछ मेन मेन चीजें हमने कवर की हैं इसमें। बाकी वो फिर पूरा रिकॉर्डिंग उससे सुनना हो तो वहां सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये कहता है कि भाई एक एलएलपी है, क्या उसको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। तो इट कैन बी रजिस्टर्ड कन्वर्टेड एज ए सेक्शन 8 कंपनी। क्या 1 पर्सन कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? पहले 1 पर्सन कंपनी को आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक। अच्छा, उल्टा हो सकता है क्या? सेक्शन 8 कंपनी को 1 पर्सन में कर सकते हो? द आंसर इज नो। ठीक है। तो रूल 7(1) ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स प्रोहिबिट्स कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी टू 1 पर्सन कंपनी। अच्छा, उसके बाद में ये इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ए सेक्शन 8 कंपनी फ्रॉम मेकिंग बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? जो सेक्शन 8 कंपनी है, क्या बैंक बोरोइंग्स ले सकती है? तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बोरोइंग्स बाय सेक्शन 8 कंपनी। हाउएवर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 180 इफ एप्लीकेबल आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद। ठीक है। चलिए, जनरल मीटिंग्स के बारे में। जैसे नॉर्मली कंपनीज में क्या रहता है, 21 डेज का नोटिस रहता है। तो सेक्शन 8 कंपनी में भी क्या वही प्रोविजन है? नहीं, उसके लिए तो सेक्शन 8 कंपनी कैन होल्ड मीटिंग विद मिनिमम 14 डेज नोटिस एज अगेंस्ट 21 डेज नोटिस। ठीक है। नॉर्मली में 21 डेज का रहता है, तो सेक्शन 8 कंपनीज में 14 डेज नोटिस पर भी मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड क्या है फॉर सेंडिंग कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये कहता है इन व्यू ऑफ द एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी सेंट टू वेरियस रेसिपिएंट्स नॉट लेस देन 14 डेज। क्योंकि एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन आ गया ना आपके लिए, तो यहाँ 21 की जगह 14 डेज में आप भेज सकते 22 एमसीए सर। हो। एमसीए नहीं, अरे आपने ये भेजनी है ना कॉपीज,
ओके सर, बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको भेजते हो ना मेंबर्स को, ओके, हाँ 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 हाँ, एनुअल ये रिपोर्ट उसकी सर, यस बात यस, कर रहा है, 21 की परफेक्ट, बजाय 14 days। ओके सर, यस, विद इन 14 days, यस। अच्छा, क्या मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में क्या रूल है इसमें? वो ये कहता है कि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है तो मिनट्स वाले रूल्स इस पर अप्लाई नहीं होंगे। ई वोटिंग फैसिलिटी के बारे में क्या है? हैविंग नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 और मोर। भाई ये क्या करता है, नॉर्मल से कंपेयर कर रहा है सेक्शन 8 को। ठीक है, जैसे नॉर्मल में ये है कि अगर 1000 से ज्यादा मेंबर है तो ई वोटिंग चाहिए, तो क्या इसमें भी चाहिए? ध्यान से यस। ठीक है, मैंने सेक्शन और रूल्स का भी रेफरेंस इसमें दे दिया है। कैन ए मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी अपॉइंट एनी पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ सच कंपनी एज इज प्रॉक्सी? ठीक है, तो ए मेंबर ऑफ ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 shall not be entitled to appoint any other person as his proxy unless such other person is also a member of such company। मतलब सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर को ही प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो आप। ठीक है, किसी दूसरे आदमी को नहीं कर सकते। जैसे कंपनी में तो होता है ना भाई, किसी को भी आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा नहीं है। जो इसको आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हो वो भी मेंबर ही होना चाहिए सेक्शन 8 कंपनी का। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे याद रहेगा, ऐसे कोई इतना मुश्किल नहीं है। इतना तो कम से कम पढ़ लेना, लाल लाल जो मार्क किया हुआ। ठीक है, ओके सर, ओके सर। क्योंकि वो पर कहना 20 नंबर का है, सीधा ये देख लो, अगर आ गया ना 20 नंबर आ जाएंगे इसमें। पर सर, फॉर 20, फॉर सर, फॉर 20 marks वी हैव टू रीड सम अदर लॉज आल्सो सर। ना ना, अगर सेक्शन 8 पर केस स्टडी आ गया तो ये कह रहा हूं, ओके सर, ओके सर, ओके सर। जो सेक्शन 8 पर केस स्टडी आ जाएगा ना, तो वो इश्यूज हाँ, यहां पर कवर हो रहे हैं, हम्म। जो वो पूछेगा। समझ रहे हो? हम्म। अच्छा, क्या बोनस शेयर इशू कर सकती है? नहीं। ठीक है, तो इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इशू ऑफ बोनस शेयर्स, क्योंकि ये क्या है, ये इसको अप्लाई करने इन प्रॉफिट्स फॉर प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और एज पर सेक्शन 8(1)(c), सेक्शन 8 कंपनी शुड इंटेंड टू प्रोहिबिट द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, डिविडेंड पेमेंट भी नहीं है। सो सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स। वेदर सेक्शन 8 कंपनी कैन पे बोनस टू इट्स एम्प्लॉइज, so there is no restriction in payment of bonus to employees। however bonus cannot be paid to a member even in his capacity as an employee। मान लो कोई डायरेक्टर है, एम्प्लॉई है ना, कोई एम्प्लॉय डायरेक्टर है, उसको नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लोगे तो मोटा मोटा हो जाएगा। हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड? ठीक है, तो इसके लिए एक मीटिंग है विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। ये थोड़ा चेंज है। ठीक है, उसमें तो है ना, क्वार्टरली मीटिंग करनी है आपको, 4 मीटिंग्स हम्म। करनी है कम से कम, बोर्ड मीटिंग्स हम्म। नॉर्मल में। यहाँ क्या है ना, एटलीस्ट एक मीटिंग करनी है विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ्स। ठीक है, कोरम क्या है बोर्ड मीटिंग्स का? कोरम इज 8 डायरेक्टर्स और 25% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लोअर। हाउएवर द कोरम शैल नॉट बी लेस देन 2 members। भाई अगर कोई कहे आपको यार 20 नंबर का है, 20 नंबर के लिए आप ये 75 पेज पढ़ लो, तो मैं तो पढ़ लूंगा भाई, है कि नहीं? पर आपको इतना भी नहीं पढ़ सकते, तो भाई कम से कम जो रेड में मार्क किया वो जरूर पढ़ लो। तो इज ए सेक्शन 8 कंपनी विच इज itself engaged in CSR activities also required to mandatory comply with the provisions of section 135 and contribute towards CSR? अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है तो क्या CSR प्रोविजंस उस पर लागू होंगे? यस। तो इन व्यू ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉज कमेटी, सेक्शन 135 अप्लाइज टू एवरी कंपनी इंक्लूडिंग सेक्शन 8 कंपनी। ठीक। सर, CSR would be a 2% of net profit। हाँ 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 हाँ। ओके सर, ओके। Is section 8 company compliant if it contributes the CSR amount towards its own activities? ठीक है, मतलब ये तो कंपनी का काम ही चैरिटेबल है सेक्शन 8 का, तो ये कह मैं अपने ही एक्टिविटीज पे खर्च कर दूं, क्या चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो स्पेंडिंग बाय द कंपनी ऑन इट्स ओन एक्टिविटीज विल नॉट क्वालिफाई एज CSR स्पेंड।
the amount needs to be spent on activities other than normal activities of the company and not for the benefit of the company or its employees. ठीक है? जी, अब मान लो स्ट्राइक ऑफ के लिए क्या प्रोविजन है इसके लिए, ये जो फास्ट ट्रैक एग्जिट मोड है, तो इट शैल नॉट बी अवेलेबल। ठीक है? और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इनको, ये देख लेते हैं। क्योंकि देखो उनके डेटा बैंक में ना सेक्शन 8 कंपनी का भी है केस स्टडी, तो अगर वो आ गई तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हें तो या तो आर या पार है मामला। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर तो आप जीरो आएगा इसमें। सर मेरे में तो पार्टनरशिप फर्म का ही आता है सर, अलाइड में से सर, अरे कभी भी ऑलवेज। कुछ भी आ सकता है भाई। ओके सर। ये टेक्स्ट दे दिया फिर, ठीक है, ये पूरा टेक्स्ट है, बस इतना ही सही पढ़ना है आपको, कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है ना? चलो ये भी हो गया, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। यहां पर थे हम लोग, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन पीरियड ऑफ सूट इफ नो पीरियड इज स्पेसिफाइड। लिमिटेशन ठीक पीरियड है, में ठीक है अगर सर। कोई नो पीरियड स्पेसिफाइड है तो लिमिटेशन पीरियड ऑफ सूट कितना होता है? 3 years। हाँ, ठीक है। सर सर व्हाट कैन बी दूसरा डन सर। ड्यूरिंग मॉरेटोरियम? मॉरेटोरियम में क्या क्या हो सकता है? सर व्हाट विल बी द नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड इन केस ऑफ सेल ऑफ असेट्स? इन केस ऑफ सेल, सेल ऑफ, नॉर्मल लिमिटेशन पीरियड वही 3 years ही होता है ना सर, जो सबके ये। हाँ सेल ऑफ एसेट्स, कोई लिमिटेशन पीरियड अप्लाई किसको होता है? ये तो सूट से अपील्स वगैरह पे अप्लाई होता है, सेल ऑफ सेल पे थोड़ी अप्लाई होता है, नहीं सॉरी सर, सॉरी सर, या तो सॉरी। रिकवरी पे अप्लाई होगा, समझ रहे हो? सॉरी सर, सॉरी सॉरी तो सर, व्हाट सॉरी कैन बी सॉरी। डन ड्यूरिंग मॉरेटोरियम? मॉरेटोरियम में क्या क्या चीजें हो सकती है ये बताओ। जो नहीं हो सकता वो तो लिखा हुआ है सेक्शन 14 में, लेकिन क्या हम्म। क्या हो सकता है? PG टू CD क्या गैस में कार्रवाई हो सकती है? राइट, वेरी करेक्ट, ठीक है। सो यू कैन प्रोसीड अगेंस्ट द पर्सनल गारंटर, यू कैन यस। फाइल ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ द ड्यूज। ठीक है, जो कंपनी सीआईआरपी में, मान लो उसने भी तो दूसरों से लेने होंगे ना पैसे, हाँ। अगर उसने दूसरों से लेने उसके लिए वो सूट फाइल कर सकती है। हम्म। Suppose XYZ Limited is into CIRP and XYZ is is to recover some money from ABC Limited. So XYZ Limited can file a petition against ABC Limited. ठीक है, फॉर रिकवरी ऑफ इट्स ड्यूज, और उसके अगेंस्ट में सेक्शन 7 सेक्शन 9 एप्लीकेशन भी फाइल कर सकती है। सेक्शन 11 बोलता है इस बारे में। ठीक है जी। तो व्हाट कैन बी डन ड्यूरिंग मॉरेटोरियम? एक तो ये हो गया एक्शन अगेंस्ट PG to CD, ये कह सकते हो, वो दे देगा एक्शन अगेंस्ट PG to CD, एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज। जो भी बेनिफिट के लिए है वो कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए किसी दूसरे ने आपके अगेंस्ट में कोई केस फाइल कर दिया, तो उसको आप प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, उसको फॉलो अप तो करना ही पड़ेगा, वो कर सकते हो। डिसगॉर्जमेंट का क्या मतलब है? डिसगॉर्जमेंट क्या होता जो रीपेमेंट ऑफ इलीगली अनलॉफुल गेन्स। इलीगली रीपेमेंट ऑफ अमाउंट हाँ। गेनफुल इलीगल गेनफुल है ना, उसको रिटर्न करना है। वेरी गुड। हाँ, सो बेसिकली टू एक्सट्रिकेट द गेन विच वॉज इलीगली ऑब्टेन्ड बाई समबडी। जैसे किसी चीज को निकालते हो ना आप, डिसगॉर्जमेंट मतलब निकालना। एक गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज मतलब कुआं समझ लो, आप गड्ढा समझ लो। डिसगॉर्ज मतलब आपको निकालना है वो पैसा। एक आदमी ने 2 करोड़ का फ्रॉड कर लिया, अब वो आपको निकालना है, वो निकालने के बाद जो राइटफुल बंदा है उसको देना है। और ये डिसगॉर्जमेंट के प्रोविजन कहाँ दे रखे हैं? ये पनिशमेंट्स में है सर।
हाँ, IP regulations, punishments, एक बार सेक्शन बता दीजिए ना। section कोई याद नहीं। मेरे ख्याल से इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन में भी आ जाएगा ये, हाँ है सर, है। है ना? तो आपको इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस में देख लोगे आप, तो मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार ये, रेस्टिट्यूशन बोल के है सर, उसमें आता है सर। हाँ, चैप्टर 5 रेस्टिट्यूशन, रेगुलेशन नंबर 14। रेगुलेशन 14 ऑफ व्हाट? रेस्टिट्यूशन। हाँ, नहीं, रेगुलेशन 14 किसका, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशन हाँ नहीं हाँ किसका? सर, हाँ सर। इन एक बार पढ़ लीजिए जरा। restitution, direction to any person to discharge the amount, section 220, board to हम्म realize the amount of disgorgement. हम्म। Board, as soon as the amount realized, disgorgement amount, invite claims by public announcement from persons who suffered loss. राइट। Claims in Form A within 30 days of public announcement. राइट, बिल्कुल Yes. ठीक है। तो वो क्या कौन है? सा सेक्शन बोल सर, सेक्शन कौन सा है सर? रूप किरण जी बोलिए ना सर, कौन सा सेक्शन है डिसऑर्डरमेंट के लिए? चैप्टर 5 रेस्टिट्यूशन है सर, इन्वेस्टिगेशंस इंस्पेक्शन में। वहां पर 14 नंबर, पॉइंट नंबर 14। ओके सर, मतलब आईबीसी का ही पार्ट है ना सर? हाँ 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 जी। हाँ, और क्या। ठीक है सर। रेस्टिट्यूशन आपको इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस में मिलेगा। ओके सर, ओके सर, ओके। आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशंस में चले जाना। इंस्पेक्शन रेगुलेशन, ओके सर। इंस्पेक्शन मैं इसीलिए यहां लिख देता हूं, ठीक है, रेगुलेशंस, और रेगुलेशन नंबर आपका आ जाएगा ये, आप 664 पे चले जाओ। अगर बुक खोल रखी है तो पेज नंबर 664 है। 664। बेयर कोड में पेज नंबर 610। हाँ ठीक है हम्म सर, ठीक है, हम्म, 610। हाँ हाँ ठीक है है ना? सर। तो ये आपका हाँ। रेगुलेशन नंबर 14 हो गया। हम्म, तो वेर ए डायरेक्शन हैज बीन इशूड to any person to disgorge the amount under subsection 4 of section 220, the board shall endeavor to realize the amount of disgorgement expeditiously, ठीक है? The board shall, as soon as after the realization of the amount of disgorgement, invite claims by a public announcement from persons who have suffered loss। तो पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है, और वो 30 डेज में अपना क्लेम फाइल करेंगे, जिसको भी नुकसान हुआ है। And board shall disburse such amount proportionately among the claimants within 30 days of preparation of the list of valid claims। तो फॉर्म ए का फॉर्मेट भी दे रखा है रेगुलेशन नंबर 14 के नीचे, ठीक है। चलिए, एमएसएमई वैल्यू इंक्लूड्स व्हाट? एमएसएमई वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड है? प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग सर। ओके हाँ, सर, नेक्स्ट। ठीक है। पोल्यूशन हाँ, कंट्रोल इक्विपमेंट इंक्लूडेड है नहीं? ये एक्सक्लूडिंग सर, एक्सक्लूडिंग एमएसएमई के टाइम में जो बनाते हैं तो ठीक है। एक्सक्लूड। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इट इज आल्सो इंक्लूड, एक्सक्लूड। एक्सक्लूडेड, ठीक है। और वैल्यू कौन सी लेनी है? परचेज कॉस्ट, डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी सर। डब्ल्यूडीवी, ठीक है। और आपको आईटीआर से लेनी है, ठीक है। अगर आईटीआर नहीं है तो एफिडेविट से होगा पहली बार। क्या सर, ये वो नहीं पता सर, आईटीआर एफिडेविट वाला वो, आईटीआर एफिडेविट। भाई ओके सर। आप कहीं वैल्यू तो लोगे ना कहीं से। वो हाँ आईटीआर में मतलब जो वो तो सर, डब्ल्यूडीवी दे रखी है वो लेनी है आपको। बट यस, अगर बट आईटीआर ऑब्वियस नहीं है, सर। मान लो पहली बार ही रिटर्न फाइल हो रही है, या अभी हाँ रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा कि देन आप उससे वी कैन एफिडेविट ले लोगे। एफिडेविट, अदरवाइज वी कैन कैलकुलेट डायरेक्टली फ्रॉम परचेज कॉस्ट सर। नहीं, परचेज कॉस्ट तो इनवॉइस, है नहीं ना, पुरानी ओल्ड मशीनरी खरीदी दूसरे से। पर सर इनवॉइस तो होगा ना सर। हाँ, ठीक है। हाँ, ओके सर, नो वरी सर। हाँ सर। चलिए, हम्म एमएसएमई वैल्यू इंक्लूड तो प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स, है ना? हम्म इन
WDV भाई इतना ही लिख देते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ऑन IBPI कैन कीप डॉक्यूमेंट्स फॉर व्हाट पीरियड? ये तो कल 6 पढ़ा ही था months हमने। सर। हैं? हाँ सर, 6 months सर, 6 months। हाँ। अच्छा वो यस सर। बोलता मेरे को कॉपी दे दो, कॉपी दे दोगे? भाई जिसके रिकॉर्ड ले जा रहे हो कह रहे भाई मुझे कॉपी तो दे दो, दे दोगे नहीं दोगे? नहीं सर। दोगे। ओके सर, ओके सर। हाँ। PPIRP एक्सप्रेशन डेट। 21 days from the commencement of हम्म, PPIRP, ठीक है। SCRA बिडिंग डेट as per the recognized stock exchange है? registered. SCRA bidding date will be the stock exchange registered date on. मतलब मैं समझा नहीं। मतलब वो सर, the date on which it will be listed on recognized stock exchange, NSE BSE, will be the SCRA bidding date. ओके ओके, एक बार जरा ग्रुप पे शेयर कर देना ये बात है। Hmm. एनी पर्टिकुलर सेक्शन विच कैन कोट? No sir, Google बाबा। कोई बात नहीं, तो गूगल बाबा ही लिख देना वहां पर, मतलब वो डाल ओके देना उसमें है। सर। ठीक है। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स, वॉलंटरी पोजीशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेल ऑफ गुड्स? Son of what constitutes sale of goods? नहीं पता सर, नहीं पता सर। नहीं ये क्वेश्चन क्या है मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। सेल ऑफ, मतलब सर सेल ऑफ गुड्स है, सेल ऑफ वॉलेंटरी पोजीशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेल ऑफ गुड्स। दो 2 मिनट का, 2 मिनट का उसका एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। सेल ऑफ गुड्स, हम्म। देखो सर सेल ऑफ कल मैं गुड्स में ना सर दो कल तीन मैंने चीजें ये मेन। सर हाँ। कल मैंने सेल ऑफ गुड एक थोड़ा रीड कर रही थी, उसमें बता रहे हैं कि जो डिलीवरी है दैट उसकी डेफिनेशन है कि वॉलेंट्री जो पोजेशन का ट्रांसफर है, इसमें डिलीवरी वर्ड आएगा बेसिकली। ओके ओके ओके। मतलब सर आई एम आल्सो एग्री विथ मैम। 51C में सर हाँ। एक जो 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 IBBI का है ना सर, जो क्वेश्चन उसमें लिखा है सर, डिलीवर अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, डिलीवरी हेलो। मींस कॉल एंड ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू हाँ अनदर, ऐसा है। रूप किरण जी। हाँ जी सर बोलिए। बस सर, आप थोड़ा करो सर, मतलब कैसे हाँ जी। सर को। हाँ सर, तो ठीक है सर। डिलीवरी है। डिलीवरी मींस वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो जो आंसर जो डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है वेरी हाँ, गुड। सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर ठीक है। 51 सर। कोरम अंडर कंपनीज एक्ट, कोरम इट विल बी और 33%। कोरम में जो है, कोरम में दो बातें हो 33। जाएंगी। सेक्शन 8 में डिफरेंट कोरम है, हाँ ठीक है ना? हाँ हाँ। और कंपनीज एक्ट में जो मीटिंग्स है वो डिफरेंट कोरम है। ये हम्म कोरम एक्चुअली हम्म डिपेंड करेगा ना, हम्म कोरम में हम्म। किसकी AGM की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है ये, यस सर। है ना? तो कोरम हाँ को थोड़ा डिस्कस कर लें। हाँ। यस सर। तो सर कोरम, कोरम का तो सिंपल है ना, अगर पब्लिक कंपनी है तो मेंबर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स। हाँ अगर पब्लिक कंपनी है तो आप देखते हैं 1,000 से कम मेंबर है, 1,000 से 5,000 या अब 5,000। सो वो 5, 15 और 30 कुछ ऐसे है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं, एक बार कुछ ऐसे नहीं, अभी पढ़ ही लो ना साथ के साथ। हाँ, एक बार आप कंफर्म। हम्म। कहाँ से पढ़े हैं सर? वो मैडम ने मुझे बोला, एकदम परफेक्ट बोला मैडम ने, बोली। हम्म। सर मैं अपनी बुक ले आती हूँ एक बारी। हम्म। कोरम। सर एक्चुअली मैंने कंपनी एक्ट में बहुत टाइम लगाया है, लेकिन स्टिल। कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में आएगा ये। हम्म। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, ये मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, ये एक मिनट इसमें, ये देखिए कंपनीज एक्ट LLP, और ये उसकी है अपने पार्टनरशिप कोरम, ठीक है।
तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स ऑफ द कंपनी लेस देन 1000, 5 मेंबर्स, 1000 टू 5000 है तो 15 मेंबर्स, और अगर इफ मोर देन 5000 देन 30 मेंबर्स प्रेजेंट, और प्राइवेट लिमिटेड में 2 मेंबर्स। ये है टू वो। मेंबर्स। ठीक है जी। ओके ओके सर, ओके सर। ये सही है, कंपनी एक्ट सही वाली जो पीपीटी ना उसके अंदर है। सही है सर। स्टूडेंट 5 सेक्शन 8 में भी 2 15। मेंबर्स है सर। हैं? सेक्शन 8 में भी 2 हाँ मेंबर्स। हाँ। और 1 पर्सन कंपनी में 1। ओपीसी। हाँ। चलिए ये भी हो गया। तो कोरम में हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं 5, 15, 30, है ना? 5, 15, 30, बस ऐसा समझ लो आप, याद रहेगा इससे। ये तो हो गया पब्लिक कंपनी में, ठीक है, और 2 हो गया प्राइवेट। भाई इतना ही काफी है। चलिए, लक्ष्मीपत खुराना यूनिवैल्यू केस स्टडी। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बारे में हमने देख ही लिया कि एप्लीकेशन फॉर्म इसका 5 है और क्लेम फॉर्म इसका बी है ऑफ सीआईआरपी रेगुलेशंस। इससे पहले वाले हमने पहले ही कर लिए थे मेरे ख्याल से, है ना? हम्म यहां तक हम कर चुके थे, हाँ सर। हम्म इससे पहले वाला या कर लिया था, है ना? यस सर। यस। ये सारा हम इसमें आंसर भी लिख चुके हैं, है ना? तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नहीं सर, वो वाला करवा दो ना सर, वो आपने किया है वो सर। क्या? अलाइड लो का क्वेश्चन। कौन सा? अलाइड लो का क्वेश्चन है ना सर, कंपनीज एक्ट वाला, ओके खुद से कर ले सर। अलाइड अलाइड लो, कंपनीज एक्ट। सर मुझे लगता है कि जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम एक एक चैप्टर या एक अलाइड लॉ पकड़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हर हर चैप्टर में से 2-2 पेज पढ़ो, मतलब ये नहीं कि एक ही चैप्टर को पूरा पढ़ते रहो। आपको पर किसी मैडम टाइम ऐसा करेंगे तो पूरी हमारी जैसे मीडिएशन में सेवन। बेसिक्स और डीपीडीपी में बेसिक्स, इस तरह मैडम। अरे ऐसा नहीं रूप किरण जी, मैम जैसे बोल रही है वैसे तो पूरी हमारी 7 जनरेशन ही चली जाएगी, फिर भी वी कांट क्लियरिंग एग्जाम। आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपका क्या वो है तरीका? वही मैम, मतलब फास्ट फास्ट कर देने का, और समरी और जितना भी मैक्सिमम हो सके उतना आउटपुट मैक्सिमम नोट्स बनाने का, और फिर अपीयर हो जाने का मैम, वही है। बाकी मैम जैसे लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो नॉट पॉसिबल। हाँ, मैं लाइन एक्चुअली लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ, वही रिटेंशन वैल्यू का फर्क पड़ रहा है। अरे पर मैम वो तो फिर क्या है, मतलब उसको रिवीजन भी करना चाहिए, फास्ट रिवीजन करना चाहिए, उसके बाद वो भी है ना हाँ जी। फास्ट। तो आप बताओ क्या कह रहे थे नरेंद्र जी, क्या करना? दूसरा भी सर, आपने अलाइड लॉ का क्वेश्चन है ना, वो फास्ट में कर देते हैं सर, थोड़ा थोड़ा नहीं टाइम लगे, 10 मिनट में पूरा निकाल देते नहीं, हैं सर। अरे भाई वो तो अपने आप करोगे ना यार, मैं क्या बताऊंगा उसमें? ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। भाई ठीक है सर। देखो, ऐसा कुछ नहीं, आप सोचो मैं आपको कोई गोली दे दूंगा, गोली कुछ नहीं है। आपको अपने क्या? आप ही मेहनत करनी है। भाई मैंने मटेरियल दे दिया, पढ़ो उसको। सही है सर, सही है, सही है सर। क्यों? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बल्कि मैं पढ़ाऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों? मैं तो फिर वो पूरा डिटेल में जाता हूँ उस चीज में, समझ लो। सही है सर ना, आप सही है पढ़ोगे सर आप। तो कम टाइम लगेगा। हाँ ओके, हाँ हाँ। हैव अ गुड डे।